Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 2 of Unit 4 DSC Introductory Development Economics Poverty as Capability Deprivation by Amartya Sen. And this is part 2 of that chapter. So let's start with the topic Healthcare and Mortality. American and European social attitudes. Healthcare or morality among American nation and European social attitude. We will see this in this topic. Inequality in the United States. So let's begin with the United States. What's the major cause of inequality in United States and how it is present in United States? Racial income disparity. The income gap between African Americans and white Americans is significant. जो income gap है between African Americans and white is American is significant. First of all is racial income disparity. Inequality in United States first of all is based on the racial income disparity. जो income gap है अफ्रीकन और white American के बीच में वो significant है और with African Americans being marked poorer, जिसमें African Americans जो हैं वो poorer हैं as compared to white Americans. This disparity is often interpreted as relative deprivation with the US context highlighting systematic inequality. ये जो disparity है US में ये एक एज अ रिलेटिव डेप्रिवेशन देखी जाती है विद इन यूएस कॉन्टेक्स्ट जो कि हाईलाइट करती है सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस. African Americans got less income as compared to white American for the same work, so the African Americans being markedly poorer. So the African Americans are markedly poorer. Next is the international comparison. What does this signify? This signifies is that when viewed from a global perspective, जब हम कोई global perspective से देखते हैं, African Americans में actually have higher income. African Americans की actually higher income है than many individual in third world countries. African Americans की within US higher income है as compared to third world countries which are less developed or developing as compared to United States. This comparison, ये जो comparison है ये suggest करता है that their deprivation while severed domestically appears less significant when considering global poverty levels. जो ये comparison है ये suggest करता है that कि जो deprivation है उनकी African Americans की वो less significant है as compared to जो globally जो countries poor है. Globally जो global जो poverty level है उस comparison में उनकी जो deprivation है वो less significant है. Next is the mortality rate and basic capabilities. Mortality rates in terms of life expectancy and mortality, African American men are found to have higher mortality rates compared to poorer men in countries such as China and India. Mortality rates के संदर्भ में जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टेलिटी रेट है अफ्रीकन अमेरिकन की वो हायर होती है एज कंपेयर टू दोस पुअर मेन इन कंट्रीज जैसे कि चाइना और इंडिया में स्पेसिफिकली केरला. दिस इंडिकेट ये क्या इंडिकेट करता है कि इनकम सिर्फ इनकम अलोन is not sufficient to explain health disparities. मतलब income alone is insufficient to explain health disparities among different racial groups. तो income अकेले को नहीं देखा जाना चाहिए और भी other factors है जिसको देखना चाहिए जैसे कि जो हम आगे डिस्कस करेंगे. Next is the gender differences. अब gender differences क्या है? That mortality rates for black women in the US also reveal troubling trends. मोर्टेलिटी रेट जो ब्लैक वुमेन की यूएस में है वो रिवील करता है ट्रबलिंग ट्रेंड जैसे कि दे गॉट ओनली लैग बिहाइंड व्हाइट मेन बट ऑल्सो शो कंपेरेबल और लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज देन वुमेन फ्रॉम पुअर नेशंस लाइक इंडिया. ये लैग बिहाइंड करती हैं जो ब्लैक वुमेन है वो लैग बिहाइंड करती हैं
इन किसमें मोर्टेलिटी रेट में एज कंपेयर टू व्हाइट वुमेन, बट ये भी एक कंपैरेटिबिलिटी शो करता है और लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज देन वुमेन फ्रॉम पुअरर नेशंस लाइक इंडिया। इनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुअरर नेशन जैसे कि इंडिया से कम है। नेक्स्ट इज दैट एज ग्रुप्स। द इशू ऑफ हायर मोर्टेलिटी रेट्स परसिस्ट इवन इन ओल्डर एज ग्रुप्स। एज ग्रुप में भी ये डिस्पैरिटी देखने को मिल सकती है कि हायर मोर्टेलिटी रेट ओल्डर एज ग्रुप में, फॉर एग्जांपल 35 to 64 इयर्स फॉर बोथ ब्लैक और व्हाइट मैन, ब्लैक मैन और वुमेन में है। नोटेबली ये डिस्पैरिटी रिमेन सिग्निफिकेंट इवन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इनकम डिफरेंसेस, और ये डिस्पैरिटी सिग्निफिकेंट रही है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इनकम डिफरेंसेस, इंडिकेटिंग डीपर सिस्टमैटिक हेल्थ इश्यूज, जो कि इंडिकेट करता है डीपर सिस्टमैटिक हेल्थ इश्यूज। हेल्थ केयर कवरेज इन द यूएस वर्सेस यूरोप। अब नाउ नेक्स्ट इज दैट हेल्थ केयर कवरेज के बीच में जो डिफरेंस दिखाया गया है यूएस और यूरोप में। फर्स्ट इज द फैक्टर इज दैट लैक ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यूनाइटेड स्टेट में ओवर 40 मिलियन इन यूनाइटेड स्टेट ओवर 40 मिलियन पीपल जो हैं वो लैक करते हैं मेडिकल कवरेज। Many of these individuals are unable to afford insurance due to economic constraints or pre-existing medical condition that private insurers often refuse to cover. Many of जो इनमें इंडिविजुअल है 40 मिलियन में, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते इंश्योरेंस, किसके कारण? इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट के कारण और प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस के कारण, जो कि प्राइवेट इंश्योर्स करते हैं, refuse to cover due to economic constraint of these individuals. Next is that European perspective. ये तो हमने यूएस का perspective देखा। इन contrast जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जनरली व्यू करती हैं मेडिकल कवरेज को एज फंडामेंटल राइट फॉर सिटीजन्स। एज कंपेयर टू यूएस, यूरोप में जो मेडिकल कवरेज है उसको एक फंडामेंटल राइट समझा जाता है सिटीजन्स का, रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, नो मैटर उनका इकोनॉमिक स्टेटस और हेल्थ हिस्ट्री क्या है। ये जो कल्चरल एटीट्यूड है लीड्स टू पॉलिटिकल क्लाइमेट। ये कल्चरल एटीट्यूड पॉलिटिकल क्लाइमेट को लीड करता है जहां लैक ऑफ इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल, जहां पे जो लैक ऑफ इंश्योरेंस होगा वो अनएक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। द कमिटमेंट टू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड सोशल सेफ्टी इज मार्क्डली स्ट्रॉन्गर इन यूरोप। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए जो कमिटमेंट है, पॉलिटिकल कमिटमेंट, वो स्ट्रॉन्गर है यूरोप में एज कंपेयर टू यूएस, जो कि इफेक्ट करता है ओवरऑल हेल्थ को, हेल्थ आउटकम को और एंड एक्सेस टू केयर को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन इन इंडिया एंड सब सहारन अफ्रीका। अभी हमने यूरोप एंड यूएस का कंपैरिजन पढ़ा। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन इन इंडिया और सब सहारन अफ्रीकन। फर्स्ट इज द रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, साउथ एशिया एंड सब सहारा अफ्रीका। साउथ एशिया में जहां ये इंडिया की बात की गई है और सब सहारा अफ्रीकन को रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसे रीजन जहां हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबली फाइंड की जाती है। These areas exhibit some of the lowest level of per capita income. इन एरिया की जो per capita income है वो lowest level पे है, which does not adequately capture the complexity of deprivation experienced by the population. ये exhibit करते हैं some of lowest level of per capita income, जो कि not adequately capture the complexity of deprivation experiences by populations. And next is the life expectancy factor, in which comparison done between India and sub-Saharan Africa. As of around 1991 का जो डाटा दिया हुआ है, जहां पे there were 52 countries जहां की life expectancy below 60 years थी, और notably 46 of these countries were located in South Asia. 52 कंट्रीज का जो डाटा आया 1991 में, जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर से बिलो थी, जहां पे 46 ऑफ दीज कंट्रीज वर लोकेटेड इन साउथ एशिया और एंड सब सहारन अफ्रीका। दिस स्टैटिस्टिक अंडरस्कोर्स द सेवरल हेल्थ चैलेंजेस फेस्ड बाय दीज रीजन्स। ये जो स्टैटिस्टिक
जो हमें स्टैटिस्टिक की डाटा मिला है, ये अंडरस्कोर करता है सेवरल हेल्थ चैलेंजेस जो कि इन रीजन्स की पीपल द्वारा फेस किए जाते हैं। अब इंडिया की क्या पोजीशन है यहाँ पे? व्हाइल इंडिया हैज एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लोज टू 60 ईयर्स। इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एवरेज 60 ईयर्स के आसपास है, और ये एक्सपीरियंस करता है एक सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज, मतलब किसी रीजन में ये 58 हो सकती है और किसी में 70 भी हो सकती है। सम रीजन्स विद इन इंडिया परफॉर्म पुअरली ऑन हेल्थ इंडिकेटर, कुछ रीजन जो है वो इंडिया में पुअरली परफॉर्म करते हैं ऑन हेल्थ इंडिकेटर एज कंपेयर टू वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज ग्लोबली, और कुछ के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है जो कंपैरिजन में मेन रोल प्ले करते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लिटरेसी। एक कंपैरिजन इंडिया और सब सहारन अफ्रीका में ये रिवील करता है कि अडल्ट लिटरेसी रेट, हाउएवर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स टेल अ डिफरेंट स्टोरी। एक कंपैरिजन है जो इंडिया और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में एक डाटा रिवील करता है अडल्ट लिटरेसी रेट का। हाउएवर ये जो डाटा है सेम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कुछ और स्टोरी बताएगा। सो इंडिया शोज अलार्मिंग हाई रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में हाई रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो शो होता है दैट कैन, जो कि एक्सीड कर सकता है दोज फाउंड इन सब सहारन अफ्रीका, जो कि सब सहारन अफ्रीका में प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट स्टेटस। The prevalence of undernourishment is significantly higher in India, where estimates suggest that 40 to 60% of children are undernourished. Next is the nutritional status. जो undernourishment का जो prevalence जो factor है वो significantly high है इंडिया में, जो कि एस्टिमेटली बताता है 40 to 60% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो अंडर नरिश्ड है एज कंपेयर टू 20 to 40% इन सब सहारन अफ्रीका। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि क्रिटिकल न्यूट्रिशनल क्राइसिस इफेक्ट कर रहा है इंडियन चिल्ड्रन को। सो दीज आर द फैक्टर ऑन विच द इंडिकेटर ऑन विच कंपैरिजन इज टेकिंग प्लेस, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लिटरेसी एंड इन द न्यूट्रिशन स्टेटस। नेक्स्ट इज द पॉलिसी इम्प्लीकेशन। सर्वाइवल फैक्टर्स, कुछ पॉलिसीज हैं जिनको इम्प्लीकेट किया जा रहा है, किया जाना चाहिए। इंडियाज रिलेटिव एडवांटेज इन सर्वाइवल रेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। जो इंडिया का जो रिलेटिव एडवांटेज है वो है इसका सर्वाइवल रेट, जो कि एट्रीब्यूट करता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से ही, इंक्लूडिंग फ्यूअर फेमाइंस, जहां पे कम फेमाइन और लेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू अफ्रीकन नेशन। क्योंकि ये क्यों होती है? ड्यू टू गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड लेसर फेमाइंस। सो यहाँ पर कम फेमाइन होती है और कम ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू अफ्रीकन नेशंस। इन कॉन्ट्रास्ट जो सब सहारन अफ्रीका है वो स्ट्रगल करता है कौन से चैलेंजेस से? जैसे कि ऑनगोइंग वॉरफेयर में इंक्लूड होना, इकोनॉमिक डिक्लाइन दैट एग्जिबरेट करता है जो लिविंग कंडीशंस है ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। नेक्स्ट इज द एंडेमिक इलिटरेसी। बोथ जो साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका है वो फेस करता है हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, अनपढ़ जो कहते हैं जिसे, इलिटरेसी अमंग अडल्ट्स, विच हैम्पर, जो कि हैम्पर करता है एफर्ट्स फॉर सोशल एडवांसमेंट और इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ इज दैट द examination highlights 3 focal features of deprivation. जो एग्जामिनिंग फीचर है ये वो हाईलाइट करते हैं 3 फोकल फीचर जो ऑफ deprivation. First is the premature mortality, and the second one is the undernourishment, and the last one is the illiteracy that require urgent policy attention. इन तीनों को urgent policy attention की जरूरत है बाय गवर्नमेंट, नई नई पॉलिसीज बनाने की जरूरत है इन दीज सेक्टर्स। ये जो एस्पेक्ट है वो रिवील करते हैं स्ट्राइकिंग फेलियर इन एड्रेसिंग बेसिक कैपेबिलिटीज विद इन बोथ रीजन्स। ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो स्ट्राइकिंग फेलियर्स को रिवील करते हैं बेसिक कैपेबिलिटीज में। बेसिक कैपेबिलिटी नहीं है इन एरिया में, दोनों रीजन्स में। रेदर देन रिलाइंग ऑन एग्रीगेट मेजर्स पर रिलाय करने की बजाय, जो कि ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स इश्यू को, किस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? इट इज
क्रूशियल टू फोकस ऑन स्पेसिफिक पैटर्न जो ऑफ डेप्रिवेशन, जो कि हमने यहीं पे 3 जिनकी बात की है, जो डिमांड करते हैं इमीडिएट इंटरवेंशन एंड टेलर्ड पॉलिसी रिस्पॉन्सेस। एंड नेक्स्ट इज द जेंडर इक्वेलिटी एंड मिसिंग वुमेन। ओवरव्यू ऑफ मिसिंग वुमेन क्या है? दैट कंसेप्ट इंट्रोडक्शन फर्स्ट इज दैट द टर्म मिसिंग वुमेन जो है ये कॉइन की थी सबसे पहले अमर्त्य सेन ने इन 1992। मिसिंग वुमेन क्या है ये टर्म? इट रेफर्स टू एक्सेस mortality and lower survival rate of women in various parts of the world, particularly in Asia and North Africa. Missing women term firstly 1992 में बाय अमर्त्य सेन ने इंट्रोड्यूस की थी। इसको रेफर किया गया है एक्सेस मोर्टेलिटी रेट और लोअर सर्वाइवल रेट ऑफ वुमेन। वुमेन मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है उनका, सर्वाइवल रेट कम है उनका, इसके कारण वुमेन मिसिंग है सोसाइटी में किसी भी इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में। नेक्स्ट इज द जेंडर डिस्पेरिटी। यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में जो वुमेन है जनरली आउट नंबर मेन, सच एज एग्जाम्पल देखा है इनमें कंट्रीज का, जैसे कि यूके, फ्रांस, यूएस रेशियो एक्सीज 1.05। इन कॉन्ट्रास्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो सिग्निफिकेंटली लोअर फीमेल रेशियो दिखाता है, जैसे कि इजिप्ट 0.95, इंडिया 0.93, पाकिस्तान 0.90। So there is the gender disparity, gender gap among these nations. Now next is the biological and social factors that contributes in the society. First is the birth ratios. Globally ज्यादा boys born होते हैं as compared to girls, about 5% more. However, women जो है वो biologically hardier and typically have better survival rates given equal care. अगर उनको इक्वली केयर दी जाए तो वो भी बेटर सर्वाइव कर सकती हैं एज कंपेयर टू बॉयज। सो नेक्स्ट इज द सोशल इन्फ्लुएंसेस। लो फीमेल मेल रेशियोस इन एशिया, जो लो फीमेल और मेल रेशियो है एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में, ये इंडिकेट करता है सोशल फैक्टर्स को जो लीड करते हैं हाई फीमेल मोर्टेलिटी इन रीजन्स में। इफ दीज रीजन मैच्ड वेस्टर्न रेशियोज मिलियंस मोर वुमेन वुड एग्जिस्ट। अगर ये रेशियो सेम वेस्टर्न रेशियो से मैच करे तो ये वुमेन वो मिलियंस में एग्जिस्ट कर सकती हैं इन अ वर्ल्ड। ओवर 50 मिलियन मिसिंग इन चाइना। 50 मिलियन वुमेन्स जो है मिसिंग है चाइना में। एस्टिमेटिंग मिसिंग वुमेन ये क्या है? कंपैरिजन बेंचमार्क। फर्स्ट इज दैट कंपैरिजन बेंचमार्क, वो क्या है? यूजिंग सब सहारन अफ्रीकास फीमेल मेल रेशियो, जो सब सहारा का फीमेल मेल रेशियो है 1.022 एज अ बेंचमार्क, ये सजेस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 44 मिलियन वुमेन हैं वो मिसिंग है चाइना में और 37 मिलियन वुमेन मिसिंग है इंडिया में। नेक्स्ट इज द मोर्टेलिटी रेट्स। ये क्या है? एज स्पेसिफिकली मोर्टेलिटी रेट्स इन इंडिया show female consistently have higher mortality until their late 30s. जो specifically age में जो mortality rates है वो क्या शो करता है? that in India female का जो mortality rate है वो consistently high है until their 30s. This जो discrepancies है is not solely due to maternal mortality. ये सोलली सिर्फ मैटरनल मोर्टेलिटी नहीं है बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट ब्रॉडर नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल हेल्थ और न्यूट्रिशन। फीमेल हेल्थ और न्यूट्रिशन को भी नेग्लेक्ट करता हुआ ये ब्रॉडर एस्पेक्ट नजर आता है। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ फीमेल मोर्टेलिटी। कॉज क्या है फीमेल मोर्टेलिटी का? नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल हेल्थ। फर्स्ट इज द जो फीमेल हेल्थ है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। एविडेंस जो इंडिकेट करते हैं दैट फीमेल चिल्ड्रन रिसीव लेस हेल्थ केयर। जो फीमेल चिल्ड्रन हैं उनको लेस हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और अटेंशन दी जाती है एज कंपेयर टू मेल्स, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हाई मोर्टेलिटी रेट्स। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंट रिसेंट ट्रेंड्स इन चाइना। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है जो कि एक्सर्बेट करती है नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन। इससे क्या होता है? लीडिंग टू इंक्रीज
सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, जिसमें सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस हो जाते हैं क्योंकि इन चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी, सिर्फ वन चाइल्ड कर सकते हैं और मेनली लोग अबॉर्शंस करवा लेते हैं फॉर सेक्स सिलेक्टिव चाइल्ड एंड अ स्क्यूड बर्थ रेशियो फेवरिंग मेल्स, और एक स्क्यूड बर्थ रेशियो देखने को मिल सकता है जो कि मेल्स को फेवर कर रहा है. नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज कंक्लूजन रिमार्क्स ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ये क्या शो करता है? फोकस ऑन इक्वालिटी वर्सेस इफिशिएंसी. Economics has historically addressed inequality beyond just income disparity. Economics ने historically address किया है inequality को beyond income disparity के. However, much discourse centers on income inequality at the expense of broader issues like health, education and social exclusion. Much discourse होना चाहिए, much जो center जो है वो उसको centrally income inequality को एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रॉडर इशू को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए एज कंपेयर टू इनकम, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन. नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करना और उसको समझना इसलिए रिक्वायर है, इसलिए रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के विद इन फैमिली जो कि इंपैक्ट करता है ऑफ पब्लिक पॉलिसीज ऑन ह्यूमन और उनके हेल्थ और सर्वाइवल को. कॉल फॉर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. लास्ट इज द कॉल फॉर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स. द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन कैपेबिलिटीज. कॉम्प्रिहेंसिव डाटा की जो नीड है किस पर? कैपेबिलिटीज बियॉन्ड इनकम इज क्रूशल, जो कि क्रूशल है फॉर एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज इफेक्टिवली. जेंडर डिस्पैरिटीज को इफेक्टिवली अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबिलिटीज पर हमें कॉम्प्रिहेंसिव डाटा की ज्यादा नीड है एज कंपेयर टू इनकम. पब्लिक डिस्कशन और पार्टिसिपेशन एसेंशियल है फॉर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, जो कि प्रायोरिटाइज करे इक्विटी को अलोंग साइड एफिशिएंसी. सो विद दिस आवर चैप्टर 2 ended here of unit 4. Chapter 5, poverty as capability deprivation. In next video, we will discuss the next chapter. Thank you for watching my video. If you like watching my video, please like, share and subscribe. Sorry, it's not chapter 5, it's chapter 4 of by Amartya Sen, namely poverty as capability deprivation.